Assalamualaikum. Good morning, students. Welcome to Hamdard Public School online classes. Today is your SST class for grade 4, and I am your teacher, Ms. Yasin Fatma. We have done with the unit number 1, and the unit number 1 is the globe and the map skills. So today we are starting with the new lesson of the SST of your book. So open page number 15. This is page number 15 of your book, and we have a new chapter, a new unit, the history, the past, and us. And chapter 1 is getting to know about the provinces. Provinces are our history of the Pakistan, main history. So we got to know about the province of the Pakistan. So first we read the chapter and then I will explain you. Okay. Our beloved country is a beautiful land which is specially gifted with beautiful and wonderful landscape, different types of plants and animals, and friendly people who are talented. Let us study the provinces of this amazing country. How many provinces do we have? We have 4 provinces: Punjab, Sindh, Balochistan, and Khyber Pakhtunkhwa. First we discuss about the Punjab. As you all know that Punjab is the largest population country amongst the 4 provinces and is second in size. It is the most fertile province. Huge fields and large orchards produce crops such as rice, wheat, cotton, fruits and vegetables. Okay, in Punjab we have a wide variety of the huge fields of rice, cotton, wheat, fruits and vegetables. As you all know that, what is the capital of Punjab? Lahore is the capital of Punjab. How much area of Lahore covered? What is the population? And mainly, what are the languages are speaking in the province Punjab? Punjabi, Saraiki and Hindu are speaking in Punjab. Okay ji, as you all know that, what is the culture of Punjab? And what is the regional dress, what is the food, and what is the historical place. Jhangi's tomb is one of the most historical place in Punjab. Regional dresses, dhoti shalwar and the kurta or shirt, you can say that. And in food we have a famous pie, Punjab's pie. And the regional dance कह लें आप या folk dance कह लें या जैसा भी आप डांस कह सकते हैं पाकिस्तानी कल्चर पंजाब का, तो वो है हमारे पास भंगड़ा. ओके जी, नाउ वी विल प्रोसीड टू द प्रोविंस बलूचिस्तान. इन बलूचिस्तान इट इज़ द लार्जेस्ट प्रोविंस इन साइज बट हैज़ द स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन अमंग्स द प्रोविंसेस. साइज़ में तो ये प्रोविंस हमारा बहुत बड़ा है, लेकिन पॉपुलेशन यहाँ बहुत कम है. इट इज़ फेमस फॉर फ्रेश एंड ड्राई फ्रूट्स. जैसे कि हमारे पास ड्राई फ्रूट्स में बहुत सारे फ्रूट्स आ जाते हैं, मेवे आ जाते हैं हमारे पास, जैसे खुबानी, बादाम, पिस्ते, अखरोट, काजू, ये सब को क्या कहलाते हैं? ड्राई फ्रूट्स कहलाते हैं, जिसके लिए बलूचिस्तान फेमस है. ओके जी. पाकिस्तान लार्जेस्ट नेचुरल गैस फील्ड एट सुई सप्लाई गैस टू द होल कंट्री. अब तक सबसे मेन पार्ट बलूचिस्तान का है वो ये है कि बलूचिस्तान के पास सबसे ज़्यादा सुई गैस पाई जाती है. इट हैज़ द लार्जेस्ट नेचुरल गैस फील्ड. जिस इलाके में ये पाई जाती है उसका नाम है सुई, जो कि सप्लाई करती है गैस पूरी कंट्री को. अब बात करते हैं हम बलूचिस्तान कैपिटल की. तो बलूचिस्तान में कैपिटल हमारे पास आ जाता है खैबर पख्तूनख्वा. ओके जी. बहुत कलरफुल और ब्राइट सा हमारा ये कल्चर होता है, और लिटरेचर में ये लोग बहुत रिच होते हैं. फीमेल्स जो हैं इनकी एम्ब्रॉयडरी बहुत ही रिच कल्चर है ये हमारा. लिटरेचर के हिसाब से फीमेल्स जो हैं एम्ब्रॉयडरी करती हैं मिरर वर्क पे, एंड बहुत पाकिस्तान में और दुनिया भर में मिरर का ये काम बहुत फेमस है, जो कि बलूचिस्तान में होता है. अब जो है हमारे पास बलूची कल्चर में हम देखना चाहें तो रीजनल ड्रेस जो हमारे पास आता है वो क्या आता है? एक शॉल होती है इनकी, शीशे के काम का एक ड्रेस होता है. मर्द जो है वो शलवार कमीज़ और पेशावरी घेड़ी आप कह लो वो पहनते हैं, और एक शॉल होती है इनकी, और एक सर पे एक टोपी टाइप ही लेते हैं ऊन की, वो होती है. ये सब क्या कहलाती हैं? ये हमारे बलूचिस्तान की पहचान है. ठीक है जी. और तुरबन कहलाती है आई थिंक ये, जो इनके सर के ऊपर बंदी होती है, तो तुरबन. और जो लेडीज़ हैं वो शीशे का ड्रेस पहनती हैं. जो इनकी मेन हिस्टोरिकल प्लेस है वो ज़ियारत है,
और खाने में जो उनका रीजनल फूड है वो है सज्जी, जो कि बकरे या शीप या लैम की होती है, जो कि जी। और जो इनका डांस है, फोक डांस, वो लेवा कहलाता है। तो ये सब बलूचिस्तान में शामिल हो जाता है। बलूची और पश्तो लैंग्वेज जो है बलूचिस्तान में बोली जाती है। इसके बाद हम आते हैं सिंध प्रोविंस के ऊपर। सिंध कौन सा प्रोविंस है? जहाँ हम रहते हैं, कराची, सिंध में आता है। ये जो प्रोविंस है थर्ड लार्जेस्ट प्रोविंस है साइज़ के हिसाब से, और सेकंड लार्जेस्ट प्रोविंस है पॉपुलेशन के हिसाब से। सही जी। इसमें जो हैंडीक्राफ्ट हमारे पास मशहूर हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी दिया मैंने हैंडीक्राफ्ट से, तो आप ये गौर से पढ़िए कि हैंडीक्राफ्ट में मैं क्या आपको बता रही हूँ। इसमें क्ले, पोइट्री, फर्नीचर और ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी वर्क आता है, जो कि सिंध में बहुत मशहूर है। कराची इसका कैपिटल है। और लैंग्वेज में जाहिर सी बात है, सिंध प्रोविंस है तो सिंधी बोली जाती है हमारे पास। और रीजनल ड्रेस में अजरक और टोपी आती है हमारे पास। डांस में हमारे पास धमाल आता है। और सबसे मेन जो हमारे हिस्टोरिकल प्लेसेस सिंध में वो है हमारे पास रानी फोर्ट, और जो रानी कोट में है। और सबसे मेन मोइंजोदड़ो का नाम आपने बहुत सुना होगा। तो ये मोइंजोदड़ो जो है हमारा सिंध का मेन हिस्टोरिकल प्लेस है। उसके बाद हमारी बारी आती है लास्ट प्रोविंस की, जो खैबर पख्तूनख्वा है। खैबर पख्तूनख्वा हम KPK भी बोलते हैं, और इसको नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस यानी NWFP भी बोला जाता है। इस साइज़ में ये प्रोविंस हमारा छोटा है, लेकिन पॉपुलेशन के हिसाब से ये थर्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन प्रोविंस है। ठीक है जी। इट इज़ ब्लेस्ड विद ग्रीन फॉरेस्ट, हाई माउंटेन्स एंड लवली वैलीज। पेशावर इज़ द कैपिटल ऑफ खैबर पख्तूनख्वा। इट हैज़ an area of 74,520 मीटर किलोमीटर per square. Population is very high, 28 lakh approximately, and the languages are Pashto, Punjabi dialects like Hindu and Saraiki. Okay, as we all discussed about the 4 provinces, so we can proceed to the next page. Our next page is what is timeline. The chapter 2 is what is timeline. टाइमलाइन जो है आपको ये बताती है कि जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ नीचे हमारे पास एक बार दिया हुआ है डेट्स का, जिसमें 1830 से लेके 1840, 1850 ये सब आ रहा है। तो ये हमारे पास क्या कहलाती है? टाइमलाइन कहलाती है, कि इतने से इतने अरसे के दरमियान जो भी इवेंट्स हुए हैं हमारी हिस्ट्री में, वो सब क्या कहलाती है? टाइमलाइन कहलाती है। टाइमलाइन इज़ अ वे ऑफ डिस्प्लेइंग अ लिस्ट ऑफ इवेंट दैट टुक प्लेस इन हिस्ट्री। अ टाइमलाइन टेल अस व्हाट हैपेंड एट डिफरेंट टाइम्स. इट ऑल्सो शोज अस हाउ मच टाइम देयर वॉज बिटवीन 2 इवेंट्स। अब देख लीजिए 1830 और 1840 के दरमियान जितने भी इवेंट्स होंगे वो हमें क्या बताती है? टाइमलाइन हमारी बताती है। और टाइमलाइन ये भी बताती है कि इस दरमियान कितने इवेंट्स हो, कितना अरसे का टाइम है। 10 ईयर्स का डिफरेंस है, इसमें हमें बताया जा रहा है कि इसमें जितने भी इवेंट्स होंगे वो हमारे किस में आएंगे? सब टाइमलाइन में आएंगे। ओके जी। वी कैन यूज़ इट टू हेल्प अस अंडरस्टैंड हिस्ट्री। इट गिव्स अ पिक्चर ऑफ डेट्स इन आवर माइंड्स। ओके जी। अब यहाँ हमारे पास एक फ़न फैक्ट दिया हुआ है, जिसमें हमारे पास एक बहुत खूबसूरत झील का जिक्र किया गया है। खैबर पख्तूनख्वा में ये झील है, झील सैफुल मलूक, जो कि इट हैज़ अ टेल एंड हिस्ट्री एसोसिएटेड टू इट्स मैजेस्टिक ब्यूटी. इट अट्रैक्ट्स थाउजेंड ऑफ टूरिस्ट एवरी ईयर फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री. ओके जी। तो ये हिस्ट्री हमें क्या बता रही है? टाइमलाइन बता रही है कि बहुत पुरानी टेल है, और हिस्ट्री जो मैजेस्टिक ब्यूटी है, माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत झील है। पहाड़ों के दरमियान ये झील है, और ये कुदरती झील है। ओके जी। और ये थाउजेंड्स ऑफ टूरिस्ट जो यहाँ अट्रैक्ट होते हैं इस एरिया में आके। तो ये हमारे पास एक फ़न फैक्ट है, जो कि हमारी टाइमलाइन के ज़रिए हिस्ट्री हमें बताई जा रही है। और नीचे एक बार दिया हुआ है, जिसमें आपको बताया जा रहा है कि ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल टाइमलाइन क्या होती है। वर्टिकल स्ट्रेट लाइन में होगी तो वर्टिकल टाइमलाइन होगी, और इस तरह जो आपने देखा है कि 1830 से हमारी कंटिन्यू हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जी। ओके जी। ओके, अब आप टाइमलाइन को समझ चुके हैं। सर टाइमलाइन हमारे पास क्या है और कितने डिफरेंस कितने टाइम से डिफरेंस से होती है। तो इससे रिलेटेड अब हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। अब हम आ जाइए नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 18 पे, जिसमें हमारे पास कुछ MCQs दिए हुए हैं, जिसमें ये प्रोविंस है हमारे पास खैबर पख्तूनख्वा का। ठीक है जी। ये देखिए लिखा हुआ आ रहा होगा आपके पास। तो इससे फैक्ट्स हमें बताने हैं कुछ खैबर पख्तूनख्वा के, कि सबसे पहले हमारे पास पूछा गया है खैबर पख्तूनख्वा फॉर्मली कॉल्ड। मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था कि NWFP भी बोला जाता है इसको। तो हम यहाँ टिक करेंगे। फिर है कैपिटल क्या है खैबर पख्तूनख्वा का? तो जाहिर सी बात है पेशावर है, तो हम पेशावर पर टिक करेंगे। इन साइज़ इट इज़ द स्मॉलेस्ट प्रोविंस. According to its population, it is the third largest province. Okay, and the majority of the population speaks Pashto. Then we come to the question number B. What is the timeline?
आज जैसे कि मैंने आपको बताया कि इट इज़ अ वे ऑफ डिस्प्लेइंग अ लिस्ट ऑफ इवेंट्स दैट टुक प्लेस इन हिस्ट्री। एज इट इज़ ये आप लोगों को लिखना है जैसे मैंने लिखा हुआ है, इसी तरह बिल्कुल काम करना है ताकि आपके और मेरे आंसर सेम हो। ओके, क्वेश्चन 2 इज़ व्हाई डू पीपल यूज़ अ टाइमलाइन। पीपल टाइमलाइन क्यों यूज़ करते हैं? पीपल यूज़ इट टू हेल्प अस अंडरस्टैंड हिस्ट्री एंड शोज़ अस हाउ मच टाइम देयर वॉज बिटवीन टू इवेंट्स। यानी पीपल ये इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि हमें हिस्ट्री का पता चल सके और इन दोनों दो इवेंट्स के दरमियान जितना भी टाइम पास हुआ या जितना भी ड्यूरेशन लगा है वो हमें क्या बताती है, हमारी टाइमलाइन बताती है। ओके, हमारी बारी आती है कॉपी के काम की। कॉपी निकालिए आप लोग अपनी, अच्छा सा टाइटल पेज बनाइए कलरफुल सा। फिर नेक्स्ट पेज पे आप लोग डेट डालिए, चैप्टर का नाम आप लिख चुके हैं प्रीवियस पेज पे, क्वेश्चन आंसर्स की हेडिंग डालिए। 2 क्वेश्चन जो है आप बुक में कर चुके हैं वो आप लोग को यहाँ नहीं करने, यहाँ से वो क्वेश्चन करने जो मैंने यहाँ अपनी हैंड राइटिंग में लिखे हुए हैं। तो यह क्वेश्चन आपको आप अपनी कॉपी में राइट डाउन करना है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ मैनी प्रोविंसेस आर देयर इन पाकिस्तान। There are 4 provinces in Pakistan. Their names are Punjab, Sindh, Balochistan, Khyber Pakhtunkhwa. This is the first question. Then we proceed to second question. What is second question? Discuss some important facts about Punjab. अब पंजाब के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी, तो ये आपको कॉपी में लिखने। इट इज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन अमंग द 4 प्रोविंस। लार्जेस्ट पॉपुलेशन है 4 प्रोविंसेस में इसकी। इट इज़ द मोस्ट फर्टाइल प्रोविंस। and its capital is Lahore and it has huge fields of rice, wheat, cotton, fruits and vegetables। ये आपको एज इट इज़ कॉपी में राइट डाउन करना है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, विच प्रोविंस इज़ फेमस फॉर ड्राई एंड फ्रेश फ्रूट्स। बलूचिस्तान इज़ फेमस फॉर ड्राई एंड फ्रेश फ्रूट्स। एंड क्वेश्चन 4 क्या है, नेम सम हैंडीक्राफ्ट्स ऑफ सिंध। द हैंडीक्राफ्ट्स ऑफ सिंध इंक्लूड ब्यूटीफुल वर्क्स इन क्ले, पोट्री, फर्नीचर एंड ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी वर्क। अब ये क्वेश्चन आंसर्स आप देखेंगे तो इसमें मैंने हर प्रोविंस का एक एक क्वेश्चन लिया है, ठीक है जी। बुक में हम लोग जो है खैबर पख्तूनख्वा को कवर किया है हमने, यहाँ हम लोगों ने सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान को कवर किया। क्वेश्चन 4 में सिंध के बारे में लिखा गया है। क्वेश्चन 3 में हमारे पास बलूचिस्तान है। क्वेश्चन 2 में हमारे पास पंजाब है, ठीक है। मैंने 4 प्रोविंसेस को इसमें कवर कर लिया है और टाइमलाइन जो है वो हमने बुक में किया। अब इसी तरीके से ये 4 क्वेश्चंस आपको कॉपी में करने हैं अपनी और बुक का काम करना है, ठीक है। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को सबको समझ आ गया हो किसको किस तरीके से कोई काम करना है। कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। इंशाल्लाह जो है हम नेक्स्ट वीक क्लास लेंगे तो उसमें मैं पहले आप लोगों से सब डिस्कस करूँगी ये सारा, फिर हम लोग जो है फर्दर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है जी। स्टे सेफ एंड स्टे एट होम। अल्लाह हाफिज़।